पुलिस सूत्रों के अनुसार मंगलवार की रात पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर आईटीआई चौराहे से दुर्गापुर विधाननगर चौकी की पुलिस ने अवैध लोहा लदी एक पिकअप वैन को पकड़ा। पुलिस ने इस गाड़ी से कई टन लोहे के एंगल जब्त किए, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 5 लाख रुपए है। पिकअप वैन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से एक है सागर अकूड़े और दूसरे है एमडी राजा खान। गिरफ्तार किए गए लोग सागर भांगर के कुसुमतला के निवासी बताए जा रहे हैं। विधाननगर चौकी ने सूचित किया है कि आरोपी को 7 दिन की पुलिस हिरासत की मांग के लिए आज दुर्गापुर उप मंडल अदालत में ले जाया जाएगा। কতদিন ধরে এই ব্যবসা জড়িত তোমরা? লাইফ টাইম যতদিন ব্যথা বড় হয়েছে ততদিন ধরেই। মাল কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে চুরি করে? আমরা চুরি করে আমরা কিনি ফেরিওয়ালা। হ্যাঁ, ফেরিওয়ালা আমরা কিনি। তোমরা কিনো? হ্যাঁ। কোথায় থেকে কিনেছিলে? গাড়ির থেকে। হ্যাঁ, গাড়িওয়ালার কাছ থেকে। কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে এটা? গোপালপুরে। গোপালপুরে কোথায়? কাটাতে আবার কোথায় নিয়ে? কোন কাটা? বঙ্কার কাটাতে। বঙ্কা? হ্যাঁ। তো চুরির মাল কিনে বঙ্কা? চুরির মাল হবে কেন? বেশ বিক্রি করেছে, কিনেছি। তোমাদের কোথায় ধরেছিল? এই তো আমাদের মুচিপাড়াতে। আইটিআই মোড়? হ্যাঁ। যেখানে চুরির মাল কিনছি সেখানে যান নাকি ভিডিওগুলো তোমার করো না? এখানে আমাদের কাছে চলে আসছে, সেন্টু কাটা যান কি ধরে নিয়ে আসো? কোথায় সেন্টু কাটাতে? এদিকে আছে। সবই জানেন যে মাল চুরি করে কিনতে না কিনতে। আর দুদিন ধরা পরে চলে আসছে ভিডিও হয়ে সবই জানেন আপনি। কোথায় মাল চুরি মাল যাচ্ছে না সব জানেন আপনি। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर प्लेट वाली सरकारी बसों में ईंधन भरने के लिए मां कैंटीन की लकड़ी रखी गई है और इसके साथ ही 6 पहियों वाली बसों के अंदर स्थायी खाने की मेज और बेंच बनाई गई है। दक्षिण बंगाल राज्य परिवहन कंपनी की बस का इतना अच्छा उपयोग, दुर्गापुर में विपक्षी दल का नेतृत्व। सूत्रों के मुताबिक दुर्गापुर स्टेशन से सटे बस स्टैंड पर मां कैंटीन की सेवा पिछले साल दिसंबर में शुरू हुई थी। कथित तौर पर उसके बाद एक सरकारी बस को बस स्टैंड की जगह पर लाया गया और एक पूरा स्थायी लंगर खाना बनाया गया। उस घटना में पश्चिम बर्धमान जिला सीपीआईएम के दुर्गापुर ईस्ट एरिया कमेटी के सचिव सिद्धार्थ बोस शामिल थे। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के पूर्व पार्षद सिपुल साहा ने विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन किया। আমরা তো যুক্ত মানে সবাই মিলে মানে করছি তো আমরা সবাই 6 জনে মিলে যুক্ত আমরা। আচ্ছা, এই যে সরকারি বাসে আপনারা এখানে খাওয়া দাওয়ার পরিষেবা দিচ্ছেন, এটা কিভাবে দেখছেন আপনি? পরিষেবা বলতে কি, এখানে তো মানুষের অনেক লোকে অনেক রকম আসছে খেতে, দুস্থ মানুষ এখানে খোলা আকাশের নিচে খেতে তো খুবই অসুবিধা হয়। হ্যাঁ, তো বাসটা দেওয়াতে অনেকেরই সুবিধে। ঝড় বৃষ্টিতে লোকে খাবে কোথায়? আমাদের তো এখানে সেরকম জায়গা নেই, ওই জন্য বাসটা দেওয়াতে সুবিধা হয়েছে অনেকে। কিভাবে পেলেন বাসটা কিভাবে পেয়েছি মানে আমরা তো দুর্গাপুর নগর নিগম থেকে আমাদের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এই বাস স্ট্যান্ডের এলাকায় আমাদের বাসটাতে আমাদের যারা কুপন কেটে খাবার নিতে আসে তাদের খাওয়া দাওয়ার জন্য বাসটা দিয়েছে। কেন ঝড় জল হয়তো গ্রীষ্মকালে প্রখর রোদ, বর্ষাত বৃষ্টি, মানুষজন কোথায় খাবে, তার জন্য দুর্গাপুর নগর নিগম থেকে বাসটা দেওয়া হয়েছে। যেহেতু বসার জায়গা নেই বাস স্ট্যান্ড এলাকা, সেজন্য এখানে বসার জন্য খাওয়া দাওয়ার জন্য বসতে পারে একসঙ্গে বাসে 24 জন। 24 জন। আচ্ছা, এই বাসের মধ্যে কি কি আছে আপনাদের? বাসের মধ্যে কি কি আছে বলতে বর্ষার জলে বিশেষ করে দিতে তো আমাদের কাঠগুলো বর্ষার জলে ভিজে যায় তো অল্প স্বল্প। মানে পুরো পরিপাটি সংসার না, পুরো পাটি ওখানে থাকে না, পুরো সংসার আমাদের। এই দলে যিনি বলেছেন, আমি বলি সরকারি বাস এটা অবশ্যই ঠিক, কিন্তু এই বাসটা হচ্ছে অকেজো হয়ে পড়েছিল। যে বাসটা রুটে চলার মতো এর ইয়েটা নেই বর্তমানে, বহু পুরনো বাস। তো মা ক্যান্টিনে যেসব দুস্থ মানুষরা খেতে আসেন তারা হচ্ছে ওখানে দাঁড়িয়ে খাবার খান, খেতে ওদের কষ্ট হয়, ধুলোবালিও লাগে, তার জন্য ভেতরে একটা বসার ক্যান্টিনের ব্যবস্থা করে তাদেরকে বসিয়ে খাবার দাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঠিক আছে, আর এই বাসটা রুটে চলার মতো বাস নয়। আমরা রুটে চলার মতো বাস কেন নেব? সেরকম জায়গায় দাঁড়িয়ে এটা হচ্ছে এই মহতী ব্যবস্থা
আপনি কি মনে করেন যে তাহলে এটা ঠিক কি হয়েছে? অবশ্যই আমি মনে করি ঠিক আছে। এটা যারা বলছে তারা ভুল বলছে, তাদের চিন্তাধারাটা আমার মনে হয় পরিবর্তন করা দরকার। এই চিন্তাধারা সবসময় নিম্নমানের চিন্তা। যদি দেখেন গোটা রাজ্যে এইভাবেই সমস্ত সরকারি সম্পত্তি নয়ছয় হচ্ছে এবং সমস্ত স্তরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিভিন্ন স্তরে সরকারি যে সমস্ত পরিবহন দপ্তর, সমস্ত জায়গাতে কোনো জায়গা বাদ নেই যে তৃণমূলের নেতৃত্বে সরকারি সম্পত্তিকে ব্যবহার করে তাদের হচ্ছে যে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তাদের বৃদ্ধি হচ্ছে না এমনটা নয়, সবারই হচ্ছে যে মানে সম্পত্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটা সরকারি বাস এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে দিয়ে সেখানে একটা গোডাউন বানানো হয়েছে এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশ্নটা হচ্ছে গোটা দুর্গাপুরের সার্ভিস, যে পরিবহনের যে সার্ভিসটা দেওয়া উচিত সাউথ বেঙ্গলের, সেই সার্ভিস নেই। বরঞ্চ কন্ট্রাক্টরদের বা হচ্ছে যে কিছু লোককে কিছু রুটের বাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে সেখান থেকে একটা মাসোহারা তোলার ব্যবস্থা আমাদের সাউথ বেঙ্গল। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई ठगने वाली चिट फंड कंपनी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ी कार्रवाई की है। 2800 करोड़ रुपए के चिट फंड घोटाले के मुख्य आरोपी पिता पुत्र वासुदेव बागची और अविक बागची को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया गया है। पहले ये दोनों आरोपी गिरफ्तार होने के बाद जमानत मिलने के बाद छुपे हुए थे और अब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इन पिता पुत्रों पर फर्जी चिटफंड कंपनियों के जरिए लाखों लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। फिलहाल इस चिटफंड कंपनी पर आम जनता का 1900 करोड़ रुपए बकाया है। मंगलवार सुबह ईडी से न्यू अलीपुर शाहपुर कॉलोनी स्थित वासुदेव बागची और अविक बागची के घर पर छापेमारी की। साथ ही शहर में उनका एक रिसोर्ट है, वहां भी उनकी तलाशी ली गई। तलाशी और पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। जानकारी के अनुसार कोलकाता और मुंबई में कई जगहों पर तलाश की गई। इस दौरान घोटाले से जुड़े कई रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। ईडी पिता पुत्र द्वारा जनता को धोखा देकर अर्जित की गई संपत्ति की जानकारी जुटा रही है। ईडी कोलकाता की कार्रवाई चिट फंड कंपनी द्वारा एकत्रित धन को सही मालिकों जमाकर्ताओं को लौटाने के उद्देश्य के अनुरूप है। ईडी इन दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी से जुटाई गई संपत्ति की जांच कर रही है। সবাই কিন্তু চেনে মুখ দেখে লাগছে। हो गया सर, एक मिनट क्या आपने किया क्या? प्लीज छोड़ दीजिए। दूसरा गाड़ी में आप मूव कीजिए, और एक गाड़ी है, ये दूसरा गाड़ी में वही तो पीछे वाला गाड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। विपक्ष का आवाज दबाने के विरोध में आज भाजपा विधायकों ने पश्चिम बंगाल विधानसभा सत्र का बहिष्कार किया। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष सहित भाजपा के सभी विधायक इस दौरान उपस्थित थे। এবং ডিসকাশন অ্যালাউড করি, ফলে আমরা চেয়েছিলাম ডিসকাশন, শুধুমাত্র এডিটেড পার্ট করা, এটা আমাদের লক্ষ্য ছিল না এবং আমরা আবেদন করেছিলাম। উনি সেই আবেদনে কর্ণপাত না করে মাইক বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই আমরা আজকে সদর থেকে দেখলাম আপনারা বেরোনোর পরও বিশ্বনাথ চারক তিনি অনেকক্ষণ বিধানসভার ভেতরে ছিলেন, মন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলছেন। এটা কি কোনো অশুভ ইঙ্গিত নাকি? আমি এই ঘটনাটা আমি জানি না, তবে বিশ্বনাথ
সিনিয়র মোস্ট এমএলএ, যেখানে পরিষদীয় দলের সবাই বেরিয়ে যাচ্ছে, তিনি তার ভেতরে থাকাটা আমার মনে হয় না সঠিক হয়েছে। তবে উনি আমাদের বর্ষিয়ান এমএলএ, আমি মোশন নিয়ে এসেছিলাম। সারা রাজ্য জুড়ে নারী এবং শিশুদের যেভাবে প্রতিদিন ধর্ষণ করে খুন করা হচ্ছে, প্রতিদিন আমরা সকাল হলেই টিভির চ্যানেল খুললে, খবর নিউজ পেপার খুললেই দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গের কোনো না কোনো জায়গায় হয় নারীদের উপর কোনো গৃহবধূ, কোথাও প্রশাসনের পুলিশের ডিউটি কর্মরত পুলিশ আধিকারিক মহিলা হলে, হসপিটাল, নার্স, শিক্ষক, শিক্ষিকা, সমস্ত জায়গাতে নারীদের উপর যেভাবে ধর্ষণ এবং খুনের যে একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছে রাজ্যে 2011 সাল থেকে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ, সেই সঙ্গে আজকে সংবিধানের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। এই সংবিধানে যেখানে আইন প্রণয়ন করা হয় যে হাউস, এই বিধানসভার হাউসের ভেতরে আজকের আমাদের কণ্ঠরোধ করে তার প্রমাণ আরেকবার দিলেন। এরা মানুষের পাশে থাকতে চান না, নিজেদের গদি আঁকড়ে থাকার জন্য এরা কোনোভাবেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে যারা সোচ্চার হবেন তাদের কণ্ঠরোধ করার জন্য মরিয়া চেষ্টা করছেন, ভেতরে বাইরে সর্বত্রই। তার একটা জ্বলন্ত উদাহরণ আজকে আমি যখন বলছি, আমার বলা বন্ধ করে, মাইক বন্ধ করে দিয়ে আমার সমস্ত বলা কথাগুলো রেকর্ড করতে না দিয়ে আজকে তার প্রমাণ দিলেন এই দলতন্ত্র কায়েম করার সরকারের যে স্পিকার, সেই। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। खाटू धाम के लिए बांकुड़ा से डाक निशान यात्रा रवाना हुई। बांकुड़ा के कुचकुचिया स्थित श्री श्याम मंदिर के प्रांगण से राजस्थान के खाटू धाम के लिए डाक निशान यात्रा उत्सव जैसे माहौल के बीच रवाना हुई। सुबह से ही कुचकुचिया स्थित श्याम मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। खाटू धाम जाने वाले डाक निशान यात्रा को देखने के लिए हर घर से भक्तों का आना जाना लगा रहा। बताया जाता है कि श्याम प्रेमियों के 21 सदस्यों का दल बुधवार को श्याम मंदिर प्रांगण से पूजा अर्चना के मध्य खाटू धाम के लिए रवाना हुए। श्याम मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान भी काफी लोगों की उपस्थिति देखी गई, जहां से झांकिया के साथ श्याम प्रेमी शहर परिक्रमा के मध्य रवाना हुए, जो कि शहर के व्यापारी हाट स्थित अन्य श्याम मंदिर में भी जाकर पूजा अर्चना की एवं स्टेशन रोड बाबा के दरबार में भी गए, जहां से डाक निशान यात्रा गौशाला से होते हुए खाटू धाम के लिए रवाना हो गई। शहर में पूरा इलाका बाबा श्याम के ध्वनि से गूंज उठा। पहली बार बांकुड़ा से खाटू धाम के लिए डाक निशान यात्रा रवाना हुई, जो बांकुड़ा की श्याम प्रेमियों के लिए गर्व की बात है एवं श्याम प्रेमी जिसके लिए खुद को गर्व महसूस कर रहे हैं। निशान यात्रा में शामिल सदस्यों का कहना है कि 21 लोगों की टीम खाटू धाम के लिए रवाना हुई है। बिना रुके बिना आराम किए दिन रात निशान यात्रा चलती रहेगी। 11 दिसंबर को खाटू धाम में निशान चढ़ाया जाएगा। झांकियों एवं गाने बाजे के साथ डाक निशान यात्रा खाटू धाम के लिए निकली। क्या है? जय श्री श्याम। आज हम लोग का बांकुड़ा धाम से बाबा का जो शीश है वो जाएगा खाटू। पहली दफ़ा बांकुड़ा शहर में पहली दफ़ा हो रहा है, बाबा का प्रचार के लिए हो रहा है। यहाँ से निकलेगा बाबा का ये रैली, व्यापारी हाट जाएगा, स्टेशन मोड़ से फिर निशान जाएगा गौशाला के। गौशाला में थोड़ा सा स्टे करके चाय पानी करके फिर आप लोग ये लोग खाटू के लिए रवाना हो जाएंगे। हम लोग इधर आ जाएंगे। बहुत उत्साह, पहली बार ये हो रहा है, अभूतपूर्व एकदम निशान यात्रा। और बाबा साथ में चलेंगे। কি উদ্দেশ্যে এই নিশান যাত্রা এবং আপনারা কতজন এই নিশান যাত্রায় যাচ্ছেন? আমরা 25 জন যাচ্ছি। আমাদের মূলত যাত্রা এখান থেকে মানে ডাক নিশান বাবার প্রচার হবে, প্লাস বাঁকুড়া থেকে মানে সবার সন্ধ্যার আমরা খাটু শ্যাম পৌঁছাবো 11 তারিখ। 11 ডিসেম্বর। তো সমস্ত লোকের কল্যাণের জন্যই আমরা এই যে নিশান যাত্রায় যাচ্ছেন, दिन रात की चलবে। आज का प्रोग्राम आप लोग का क्या है? आज हम लोग श्याम परिवार, श्याम महोत्सव सेवा समिति सब मिलके बांकुड़ा का जितना श्याम मंदिर है सब मिलके आज हम लोग का बांकुड़ा से डाक निशान यात्रा शुरू हो रहा है। और ये डाक निशान यात्रा बांकुड़ा श्याम मंदिर से श्याम परिवार, व्यापारी हाट, स्टेशन मोड़, श्याम दरबार से होते हुए खाटू श्याम तक, रानीगंज, बर्दवान, उधर धनबाद होते हुए खाटू श्याम नगरी तक पहुँचेगी। कितने दिन का प्रोग्राम है? 15 दिन का प्रोग्राम है।
আমরা মূলত এটা বাবার প্রচারের জন্য বেরিয়েছি। বাবার প্রচার চারদিকে হোক, আর বাঁকুড়ার একটা মানে বাঁকুড়ার উন্নতি হোক বা বাঁকুড়ার মঙ্গল কামনা হোক, এই জন্য আমরা নিশান যাত্রা নিয়ে বেরাচ্ছি। আজকে শুরু হচ্ছে এটা আমার 11 তারিখ পর্যন্ত চলবে। 11 তারিখ আমরা ডাইরেক্ট খাটু পৌঁছাবো। এটা 24 ঘন্টা, দিন রাত 24 ঘন্টা, 13 দিন আমরা নিশান চলবে। আমরা এখানে 25 জন আছি। হ্যাঁ, বাঁকুড়া মঙ্গল কামনা চাইবো, আমাদের সবার যা মনোকামনা সবার পূরণ হোক, এটাই চাইবো বাবার কাছে। সতীশ ডালমিয়া। এই নিশান যাত্রা বাঁকুড়ার থেকে 1500 কিলোমিটার দূর আমাদের যে খাটু শ্যাম মন্দির আছে, বাবার যেটাকে আমরা হেড অফিস বলি, সেই খাটু শ্যাম মন্দির একটি ডাক নিশান বাঁকুড়ার থেকে খাটু শ্যামের উদ্দেশ্যে বেরোচ্ছে। এই নিশান যাত্রা আজকে শুরু হয়ে 11ই ডিসেম্বর 2024 তারিখ বাবার একাদশী। সেই একাদশীর দিনে খাটু শ্যাম মন্দিরে এই নিশান অর্পণ করা হবে। এই নিশান যাত্রায় বাঁকুড়ারই কিছু শ্যাম প্রেমীরা আছেন, তাদের উদ্যোগে এই নিশান যাত্রা হচ্ছে এবং সকল বাঁকুড়াবাসীর সহযোগিতায় এই নিশান যাত্রা আজ খাটুর উদ্দেশ্যে রওনা হবে। এই নিশান যাত্রায় দেখুন যাবে বলতে মোটামুটি 25 জন। একটা बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पश्चिम बंगाल से सेठ पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर व्यापक अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने इसको लेकर अभी तक मुंह नहीं खोला है। ममता बनर्जी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है और चुप है। इसको लेकर भाजपा नेता समीक भट्टाचार्य ने आज सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, पुजारी को गिरफ्तार किया जा रहा है, पूरे देश में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस पर एक भी शब्द नहीं बोल रही है। उन्होंने इसका विरोध तक नहीं जताया है। हमास पर हमला होता है तो बंगाल में इसका विरोध जताया जाता है, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू भाई बहनों पर अत्याचार को लेकर ममता बनर्जी चुपचाप है। बांग्लादेश में जो है वह हम लोगों के भाई बहन हैं, लेकिन उनके दुख दर्द को लेकर ममता बनर्जी को कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ राजनीति के लिए ही विरोध करती है। দেখুন, গতকাল চট্টগ্রাম সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাংলাদেশে যে অত্যাচার চলেছে হিন্দুদের ওপরে, যেভাবে কালী মন্দির ভাঙা হয়েছে, যেভাবে বিভিন্ন মঠকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, যেভাবে মহিলাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে, যেভাবে সম্পত্তি লুট হয়েছে, আগুন লাগানো হয়েছে, নিরপরাধ মানুষকে যারা প্রতিবাদ করছিলেন কৃষ্ণদাসের গ্রেপ্তারের, তাদের উপরে বর্বরচিত লাঠিচার্জ হয়েছে এবং এক সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের উপরে অস্ত্র নিয়ে হামলা করেছে। কোথায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কোনো মানবিক মুখ? কেন মুখ্যমন্ত্রী চুপ আছেন? কেন প্রতিবাদ করছেন না? তিনিই তো বললেন ওপার বাংলা এপার বাংলা এক, মানুষ আসবে যাবে, দেবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে। আজকে চুপ কেন তৃণমূল? আমরা তো নয় সিলেক্টিভ প্রতিবাদীদের চিনি, তারা তো মোমবাতিগুলো ঘরের কোথায় ঢুকিয়ে রেখেছেন কেউ জানে না, তারা তো রাস্তায় নেই। ইথিওপিয়ায় মার্কিন অবরোধ, গাজা স্ট্রিপে ইসরায়েলের হামলা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাস্তায় মিছিল হয়, আর আজকে এত বড় অত্যাচার হচ্ছে পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশে। ওই ঘোষ বোস গুহ মিত্র, ওই সরকার মণ্ডল ঢোল পোদ্দার, ওখানের গুপ্তা জয়সওয়াল, ওখানের জৈন, ওখানের রাজবংশী, ওখানের মতুয়া, আমাদের রক্ত, আমাদের ভাই, তারা মারা যাচ্ছে, একটা শব্দকে উচ্চারণ করতে পারছেন না। কোনো প্রতিবাদ হচ্ছে? ब्यूरो रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के मंगलवार को दिए गए बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग सुप्रीमो ममता बनर्जी के फैसलों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। कबीर का यह बयान ममता बनर्जी द्वारा पार्टी में अनुशासन और नेतृत्व में सुधार के लिए कई समितियों गठित करने के लिए एक दिन बाद आया है। सुप्रीमो ने राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। उनके इस बयान के बाद पार्टी एक्शन में आई है। टीएमसी ने पार्टी नेता हुमायूं कबीर को उनके बयानों को लेकर कारण बताओ नोटिस भेजा है।
3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। एक टीवी चैनल से बात करते हुए भरतपुर विधायक पश्चिम बंगाल विधानसभा परिसर के बाहर एक टीवी चैनल से बात करते हुए भरतपुर विधायक कबीर ने आरोप लगाया था कि हमारी नेता ममता बनर्जी के आसपास के लोग उनके शुभचिंतक नहीं हैं। वे केवल अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं, न कि ममता को राज्य के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में बनाए रखना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव में इन लोगों को इसका जवाब मिल जाएगा। इधर पार्टी के द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने पर हुमायूं कबीर ने कहा है कि विधानसभा आने पर उनको इस बात की खबर मिली है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पत्र नहीं मिला है। लेकिन मैंने सुना है कि पार्टी की तरफ से नोटिस जारी किया। अगर ऐसा है तो मैं उसे कारण बताओ नोटिस का जवाब दूंगा। चिंतित नई आनंदित नई दुखित नई। আগে যে বক্তব্য রেখেছেন নিজের বক্তব্য অন্যরা আমি তো বলছি সেটা তো কালকের কথা, কাল বলেছি, কালকের কথা আজকে আর নতুন করে হবে। বলছি হুমায়ুন দা এতদিন ধরে দল করছেন, সেই জায়গায় আজকের এই ঘটনা, এতে কি আপনার মনে হয় যে এরপরে আপনাকে মানে দলের আপনি থাকবেন বা আপনার কি মনে হয় যে এটা অপরাধ? দেখুন, ভবিষ্যৎ করে কোনো কথা আমি বলি না, আর আমি অ্যাস্ট্রোলজি করি না। আমি রাজনীতি করি প্র্যাকটিক্যাল ময়দানে। আমাদের নেত্রী 1984 সাল থেকে 7 বারের এমপি, 3 বারের মুখ্যমন্ত্রী, দীর্ঘ টাইম ধরে তিনার লাইফে অনেক পরিশ্রম করে নিজের লাইফের রিস্ক নিয়ে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে প্রতিষ্ঠিত একজন বাংলার না ভারতবর্ষের একজন মহিলা নেত্রী হিসেবে তিনার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখে কেউ কেউ ক্ষমতা কুক্ষিগত করার চেষ্টা করছে, মূলত তাদেরকে আপনি টার্গেট করেছিলেন, মানে তাদের বিরুদ্ধে আপনি মুখ খুলেছেন। এই ব্যাপারটা নিয়ে আপনি কিছু বলবেন? এই ব্যাপারে আর আমি কোনো কথা এখন বলবো না। আমি কাল যেটা বলেছি, কালকের কথা আপনারা সবাই রেকর্ডে রেখেছেন, আবার 10 বার চালাঙ্গা আমার বলার নেই। কিন্তু আমি আজকে নতুন করে শোকজের প্রশ্নে কথা বলছেন, শোকজের আমি যথাযোগ্য সময়ে উত্তর দেব, এটুকুই আপনাদের বলছি। আমি আর নতুন করে কোনো কথা বলতে চাই না। অধিকার আছে, ডিসিপ্লিনারি কমিটি আমাকে শোকজ করলে আমি তার যথাযথ উত্তর সময় মতো দিই। বারবার যে প্রকাশ্যে মন্তব্য করা কি আপনার মনে হয় যে ভুল হচ্ছে? দেখুন, আমি এমনি কোনো মন্তব্য করব না। দল, ডিসিপ্লিনারি কমিটি তাদের অধিকার রয়েছে, তাদের অধিকার প্রয়োগ করে আমাকে যেসব পয়েন্টে শোকজ করছেন, আমি যথাযথ সময়ে তেনাদের সম্মান জানিয়েই আমি শোকজের উত্তর। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। CMSI सीटू की ओर से विभिन्न मांगों को लेकर सातग्राम एरिया महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। इस बारे में संगठन के अध्यक्ष श्रीवास्तव जी ने कहा कि प्रबंधन द्वारा जो JCC मीटिंग होती थी वह नहीं हो रही है, जिससे श्रमिक प्रबंधन के सामने अपनी परेशानियों को रख नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही खदानों को निजीकरण करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा प्रबंधन की तरफ से यह कोशिश रहती है कि खदानों में श्रमिकों की संख्या जितना हो सके कम किया जाए। इसे लेकर जब श्रमिक संगठन प्रबंधन से बात करना चाहते हैं तो कोई मीटिंग नहीं होती है। वहीं श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के नाम पर कोलियरी में रिश्वतखोरी चलती है। पैसे के बदले श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज पूरे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के हर महाप्रबंधक कार्यालय के सामने यह प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जब वह लोग यहां पर आए तो उन्होंने देखा कि यहां के जनरल मैनेजर, पर्सनल मैनेजर में से कोई भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस तरह से प्रबंधन के शीर्ष व्यक्तियों के भाग जाने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। मिल बैठकर आपस में बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान निकालना होगा, नहीं तो श्रमिक कहाँ जाएंगे? वह बार बार प्रबंधन के सामने अपनी गुहार लगाएंगे। ये जो है पूरे ECL में किया जा रहा है, जितने भी GM ऑफिस हैं हर जगह किया जा रहा है। और इसकी जो मूल मांग है, दो बात है। पहली चीज़ ये है कि जो हमारी जो मज़दूरों के साथ, जो ट्रेड यूनियन के साथ जो मीटिंग होती थी, आपका जिसको स्ट्रक्चरल मीटिंग कहा जाता है, या जो बाईपार्टाइट फोरम है आपका, JCC, वेलफेयर कमेटी, सेफ्टी कमेटी, ये सारी मीटिंग जो है नहीं हो रही है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि जो वर्कर की जो डिमांड है, वो वर्कर की डिमांड जो है, वर्कर की डिमांड पर कोई भी विचार जो है मैनेजमेंट नहीं करेगा।
दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि हमारी जितनी भी कोयला खदानें हैं, ये कोयला खदानों को एक बंद करने की साजिश हो रही है, जिससे उसको बंद कर करके रेवेन्यू शेयरिंग में दिया जा सके या किसी प्राइवेट मालिक के हाथ में सौंपा जा सके। दूसरी जो बात है कि आपका जो खदानें चल रही हैं उनको एमडीओ के नाम पर जो है ठेकेदार को दिया जा रहा है, वहाँ से परमानेंट मजदूरों को हटाया जा रहा है। आज मान लीजिए कि आज जो हमारी संख्या थी ईसीएल की या कोल इंडिया की, धीरे धीरे परमानेंट मजदूरों की संख्या कम हो रही है। प्रबंधन ये चाहता है, सरकार ये चाहती है कि इस संख्या को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके, और इसी दिशा में वो आगे बढ़ रही है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर करके हम लोगों ने पूरे ईसीएल में हर जीएम ऑफिस में हम लोगों ने आज जो है डेमोन्स्ट्रेशन देखा गया। वो दुर्नीति का आरोप है उनके ऊपर, और ये देखा जा रहा है कि जो केस होना चाहिए वो नहीं हो कर करके बहुत सारे जो केस हैं वर्कर के, बहुत सारे जो उनका जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान किया जा रहा है, उस समाधान में जो है वहाँ पर घुसखोरी हो रही है। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे आपका पोस्टिंग हो, ये सब को लेकर करके काफ़ी जो है यहाँ पर दुर्नीति चल रही है। देखा जा रहा है कि पहले ही कहा कि जेसीसी मीटिंग नहीं हो रही है, माने जितना भी बाईपार्टाइट फोरम था, जो द्विपाक्षिक जो स्तर पर जो हम लोग चर्चा करते थे मैनेजमेंट के साथ बैठ कर, वो सारे स्तर को जो है, सारे फोरम्स को जो है ख़त्म कर दिया। हेडक्वार्टर मैनेजमेंट से बात हुआ है, हेडक्वार्टर जो है, जो डायरेक्टर पर्सनल है या जो सीएमडी हैं, उन लोगों का कहना ये है कि नहीं, हम लोग जो है रेगुलर जेसीसी करेंगे, रेगुलर स्ट्रक्चरल मीटिंग करेंगे या रेगुलर जितनी भी कमेटियाँ हैं सबकी मीटिंग करेंगे। उन लोगों ने कहा है, आश्वासन दिया है, आज से 1-1.5 महीना पहले आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक जो है उस पर जो है उसको जो है लागू नहीं किया गया, तो कहीं पर भी ऐसी कार्रवाई जो है नहीं हुई। आज लोकल तो पहली बात है कि जो जीएम जो है यहाँ पर अभी कहीं चला गया, जो पीएम था वो भी कहीं चला गया। जो अब इन लोगों का कहने का मतलब होता है कि वर्कर की समस्या जब हम रखने जाते हैं, इन लोग के भागने से तो समाधान नहीं होगा, इनको रह करके उसका समाधान करना होगा। भागने से क्या फायदा? आज नहीं, आज भाग के जाएंगे, कल फिर हम आएंगे, कल फिर हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, परसों हम लोग फिर प्रदर्शन करेंगे। कहने का मतलब होता है कि ये इन लोग को समझना चाहिए कि जिससे हमारी बात जो है वो इन लोग सुने, और जो वर्कर की जो समस्या है उस समस्या का इन लोग समाधान करें। प्रबंधन को तो नहीं रखा जाता है, खदान बंद करने के लिए तो नहीं रखा जाता है। वर्कर का जो समस्या है, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है, वर्कर का जो समस्या है उसको समाधान करने के लिए रखा जाता है, उसको जटिल करने के लिए नहीं रखा जाता। आपका परिचय? मेरा परिचय है जीके श्रीवास्तव, हम CMSI के प्रेसिडेंट हैं और ऑल इंडिया। जामुरिया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PBTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल शहर के विभिन्न समस्याओं को लेकर आज आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया। नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय को ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यतः 4 मांगों के समर्थन में यह ज्ञापन दिया गया। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता शाह आलम ने बताया कि मुख्यतः 4 मांगों के समर्थन में आज साउथ ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से आसनसोल नगर निगम को ज्ञापन सौंपा गया। इनमें पार्किंग में अवैध रूप से पैसे लेने का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आसनसोल शहर के 9 नंबर पार्किंग में अवैध रूप से लोगों से पैसा लिया जाता है। कानून के मुताबिक 3 घंटे बाद पार्किंग का पैसा 2 गुना होता है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटे बाद ही 2 गुना पैसा लिया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले के मेयर ने न जाने किस कानून के अनुसार 2025 तक पार्किंग चलाने का अधिकार दे दिया था, लेकिन आज हालत यह है कि पहले 5 पार्किंग का लिया जाता था, अब 10-20 भी लिया जा रहा है। आज हम लोग आसनसोल साउथ ब्लॉक कांग्रेस की ओर से मेयर साहब से हम लोगों ने टाइम लिया था। हम लोग मेयर साहब से मिलने के लिए आए थे, डेपुटेशन देने के लिए। 4 मुद्दा है। पहला यह है कि आसनसोल नगर निगम के अंदर में जो पार्किंग आता है, पार्किंग में आप देखेंगे धांधली लूट हो रहा है पब्लिक के साथ। उसका NIT हमारे हाथ पे, इस NIT पे साफ साफ लिखा है कि 3 घंटे के बाद पैसा डबल लिया जाएगा। एक पार्किंग ऐसा भी है शहर में जो पार्किंग नंबर 9 पहले के मेयर साहब ने पता नहीं किस आइन के मुताबिक 2025 तक उनको दे रखा है। वहां पे देखेंगे आप कि 1 घंटे के बाद डबल पैसा लिया जाएगा। 5 रुपए का चार्ज था, 10 रुपया हो गया। अब 10 की जगह 20 भी लेते हैं और घंटे के बाद में लेते हैं।
ये सब धांधली नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग आए हैं कंप्लेंट तौर पर, कंप्लेंट किया है। आप दूसरा देखेंगे वार्ड नंबर 46 में 2 तालाब है, पुकुर 2 तालाब, जो एक पद्म तालाब छोटा हो गया है। ফ্ল্যাট এবং বাড়ি তৈরি হয়েছে কিনা আমাদেরকে বলতে হবে না, এটা কি ছিল, পুকুর ছিল, কত বড় ছিল, কতটা জায়গা এখন বেঁচে আছে, এক কারখানা হয়ে গেছে। 2 নম্বর হচ্ছে আপনার সায়ের পুকুর, এটা নিয়ে বিগত দিনে কর্পোরেশন একবার পদক্ষেপ নিয়েছিল, তারপরে পালাবদল হয়, যে করেছিল সে এখন অন্য দলে গিয়ে বসে আছে, এদের জানি না কতটা সদিচ্ছা আছে, এখন আবার ওখানে শুরু হয়েছে। এছাড়াও 14 নম্বর ওয়ার্ডে আপনি দেখবেন 2টো পাথর খাদান, কাল্লা মোড়ের বাঁ দিকে ডান দিকে, ওগুলো অ্যাবান্ডেন্ট পাথর খাদান, ওগুলো কিন্তু ভরাট হয়ে প্লটিং হওয়া শুরু হয়েছে। দেখুন, আসানসোল সাউথ ব্লক কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে একটা ডেপুটেশন আমাদের কাছে এসেছিল। আজকে কেউ নেই বলেই আমার কাছে এসছে, মেয়রকে ওনারা মেয়র সাইন দিয়েছিলেন ওনাদের। তো এই ভুরি ভুরি অভিযোগ ওনারা করে গেলেন। প্রথমত করে গেলেন ভলভো বাস স্ট্যান্ড নিয়ে, যেটা আসানসোল মানুষের দীর্ঘদিনের ডিমান্ডও ছিল এবং আমরাও চাইছি কর্পোরেশন থেকে ওটাকে সরিয়ে দিতে। মেয়র কদিন আগে আমাকে এটা বলেও ছিলেন যে এরকম ব্যাপার আছে, আমরা এটা সরিয়ে দেবো, মনে হয় খুব তাড়াতাড়ি এটা সরে যাবে। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल नगर निगम के 78 नंबर वार्ड इलाके में सेल आईएसपी द्वारा विकास कार्यों के लिए वहां पर मंदिर को हटाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि वहां पर एक शिव मंदिर और गणेश मंदिर था। सेल आईएसपी द्वारा विकास कार्य को करने के लिए उस जगह की जरूरत थी। लोगों ने बताया कि उन्होंने सेल आईएसपी के इस कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की, लेकिन उनकी एक ही मांग थी कि मंदिर के स्थान पर दूसरी जगह मंदिर का निर्माण करवा दिया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले सेल आईएसपी ने आश्वासन दिया था कि वह मंदिर के बदले अन्य स्थान पर मंदिर का निर्माण करवा देंगे, लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर रहे हैं। इसी को लेकर आज स्थानीय लोगों में नाराजगी पसर गई और उन्होंने सेल आईएसपी अधिकारी द्वारा किए जा रहे कार्य को रुकवा दिया। घटना की जानकारी पाकर स्थानीय पार्षद अशोक रुद्र भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सेल आईएसपी के अधिकारियों से बातचीत की। अशोक रुद्र ने कहा कि निश्चित रूप से यह जगह सेल आईएसपी की है, लेकिन यहाँ पर एक शिव मंदिर और गणेश मंदिर था। सेल आईएसपी की तरफ से यहाँ पर विकास कार्य को करने के लिए मंदिर को हटाया गया था। उन्होंने स्थानीय लोगों से वादा किया था कि वह मंदिर के बदले अन्य जगहों पर मंदिर का निर्माण करवा देंगे, लेकिन अब वह अपने वादे को पूरा नहीं कर रहे हैं। अशोक रुद्र ने कहा कि निश्चित रूप से यह पूरी जगह सेल आईएसपी की है, लेकिन अगर देखा जाए तो सेल आईएसपी के कई जगहों पर अवैध अतिक्रमण हुआ है। इस जगह से कुछ दूरी पर भाजपा नेत्री ने सेल आईएसपी की जगह पर अपना कार्यालय बना रखा है। आईएसपी के क्वार्टरों पर अवैध अतिक्रमण हुआ रखा है, जहां पर अवैध रूप से लाखों का लेन देन होता है, जिसमें सेल आईएसपी के कुछ अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब की तरफ प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं है। वह मंदिर को हटाने पर तुले हुए, लेकिन अपने वादे के अनुसार मंदिर हटाकर दूसरी जगह मंदिर निर्माण नहीं करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़े अफसोस की बात है कि केंद्र सरकार मंदिर निर्माण को लेकर सत्ता में आई थी और इसी केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था सेल द्वारा मंदिर को हटाया जा रहा है और वादे के अनुसार मंदिर की जगह मंदिर का निर्माण नहीं किया जा रहा है। अशोक रुद्र ने कहा कि आज स्थानीय लोगों के विरोध के चलते यहाँ पर सेल आईएसपी द्वारा किए जा रहे कार्य को रोक दिया गया। মানে বহু বছর ধরে গণেশ পুজো করা হয়, ঠিক আছে। গত বছরে যখন ইস্কোবালা যখন এখানে কিছু ওদের ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে, আমরা ওর মধ্যে কোনো বাধা দিইনি। বলা হলো কি এইখানটাতে আমাদের গণেশ পুজোর জন্য মন্দির করে দেওয়া হবে, গত বছর কথা দিয়ে গেছে। আজ দেখছি পুরোই মানে ঘেরে দিয়েছে, তাহলে মন্দিরটা কোথায় হবে? ইস্কোবালা আজ ইস্কোবালা বলছে কি এটা ইস্কোর জমিন, আপনারা কিছু করতে পারবেন না। আমি বলছি ইস্কোর জমিনে 3 তলা 4 তলা 5 তলা অব্দি ফ্ল্যাট আছে। এইটা কারা করছিল? ইস্কোবালা তো সেলের জায়গা থেকে আমাদের কোনো অবজেকশন নেই, কোনো কিছু নেই, কিন্তু আমাদের একটাই শুধু দায়, আপনারা যা কিছু করুন 10 তলা 5 তলা বিল্ডিং করুন, আমরা কিছু আসলে আমাদের কেন আপনারা মন্দির ভেঙে মন্দির বানিয়ে দেবেন বলেছিলেন, না বানিয়ে করছেন। এখন ইস্কোটা নিয়ে কথা দিতে চাইছেন এবং যেটা আরও মানে চিন্তার ব্যাপার, ইস্কোর থেকে জমি চাইছি একটা হেলথ সেন্টারের জন্য, ইস্কো সেটাও দিচ্ছে না। আবার ইস্কো এইগুলো চোখে পড়ছে না, রাস্তার ওই পারে একজন বিজেপি নেত্রী এতটা জায়গা দখল করে
বানিয়েছে, সেগুলো ইসকো করছে না। ইসকো এখানে এসে ইসকোর এত কোয়ার্টার দখল হয়ে আছে, ইসকোর এক শ্রেণীর সিকিউরিটি এবং অফিসারের সাথে ইনভলভ, যাতে মাসে লক্ষ লক্ষ টাকার কারবার হয়, সেটা নিয়ে ইসকো কোনো স্টেপ নিচ্ছে না। উল্টে মন্দির বানিয়ে যে সরকার এসেছিল, যার অধীনস্থ আমাদের সেল আইএসপি, সেই সরকারেরই একটা অংশ मंदिर भेंगे। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बरनपुर के शांति नगर निवासी शिखा राय ने आसनसोल नगर निगम के टाउन प्लानर सौमेंद्र राय पर आरोप लगाया है कि वह आसनसोल नगर निगम में टाउन प्लानर होने का प्रभाव दिखाकर अपने घर का अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं, जिससे उनके बगल में स्थित शिखा राय को परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों से सौमेंद्र राय इस तरह से अवैध रूप से निर्माण करवा रहे हैं। बार बार कहने के बावजूद वह कोई आपत्ति नहीं सुन रहे हैं और निर्माण करवाए जा रहे हैं। शिखा राय ने आरोप लगाया कि वह नगर निगम के टाउन प्लानर है, इसलिए वह अपने पद का अवैध इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में जब हमने सौमेंद्र राय से बात की तो उन्होंने कहा कि वह कोई अवैध काम नहीं कर रहे हैं, वह अपने जमीन पर ही निर्माण करवा रहे हैं और इसमें किसी को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि वह अपने भवन का जिस तरह से निर्माण करवा रहे हैं, नगर निगम की तरफ से कई बार अधिकारी जाकर जांच कर चुके हैं और किसी प्रकार की अनियमितता अच्छी नहीं गई है। सौमेंद्र राय ने कहा कि उनके और शिखा राय के घर के बीच जो जगह है वह BLRO दफ्तर के नए रिकॉर्ड के मुताबिक अब सरकारी जमीन हो चुकी है, इसलिए उस जमीन पर किसी का भी हक नहीं है। उन्होंने किसी भी प्रकार के अवैध निर्माण के आरोपों से पूरी तरह से इनकार किया। वहीं इस बारे में मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि अगर किसी पर आरोप लगता है तो नगर निगम की तरफ से उसकी पूरी जांच की जाएगी और अगर किसी प्रकार के अवैध कार्य में नगर निगम का कोई अधिकारी भी लिप्त है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। করতে পারে এবং আমাকে যখন যেটা আমি যখন বলেছি তখন বলছে তুই যেখানে খুশি জাগিয়ে যা কিছু কর গিয়ে, এছাড়া অনেক কিছু এলিগেশন এসব তো করেছে। না, আমাকে একবার নয়ন নস্কর বলেন যে আমি হিয়ারিং দেবো, মাধববাবু বলে কারো কথা বলেন যে আমি চিঠি করে আপনার চিঠি যাবে, আপনি তারপর আসবেন, কিন্তু সেই চিঠি কোনোদিনও আসেনি। কোনো মেয়রকে আমি লাস্ট টাইম এইবার একবার গিয়ে আমি ভিজিট করেছিলাম, তখন এরকম রান্নাঘর শিফটিংয়ের আমি বললাম স্যার এটা বন্ধ করুন, তখন একজন সুব্রতবাবু বলে একজন আসেন, তিনি চেকিং করে যান, তারপর কিছুদিন বন্ধ থাকে, আবার শুরু করেছে যে রান্নাঘর শিফটিংয়ের এইদিকে সমস্ত কিছু। তখন আমি এইবার লাস্ট টাইমে আবার আমি মেয়র সাহেবকে জানাই এবং আর একজন লিগ্যাল কোনো কেউ ছিলেন, আমি সুদীপ্তবাবু বা কিছু, তাকেও আমি জানিয়েছি এবং একদিন এসেছিলো চেকিংয়ে, এই যে লাস্ট যে চিঠিটা করেছিল এই শুক্রবারই এসেছিল, লাস্ট শুক্রবার চেকিংয়ে এসেছিল, কিন্তু তারপরে ওকে কিছু মনে হয় বন্ধ করতে বলেনি, কারণ এনক্রোচমেন্ট। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ওই ভিডিওতে আপনি একবার দেখিয়ে দিন এই দিকটাতে ঘুরিয়ে, তবে তো আমি বোঝাতে পারবো। ওই দেখুন এই যে রাস্তাটা দেখছেন, এইটা আগে RS দাগ নম্বরে এই দাগটার সঙ্গে একসাথে ছিল, হলো এখন LR দাগ নম্বর হয়ে গেছে, যেটা ওনারা অবগত নন ওই ব্যাপারে। এইটা অ্যাকচুয়ালি এখন সরকারি জায়গা হয়ে গেছে এই পুরো জায়গাটা, এটার LR দাগ নম্বর আলাদা, ওনাদের LR দাগ নম্বর আলাদা, আর এই পাঁচিল থেকে এটা BLR অফিস থেকে করেছে, আমাদের তোর মধ্যে কিছু নাই, এটা হচ্ছে 4900 দাগ নম্বর এইটা। তাহলে আমরা কিন্তু আমাদের প্লটেই রয়ে গেছি, আমরা কিন্তু ওনাদের কোনো প্লটে যাইনি। ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে এই জায়গাটা ওনার এনক্রোচমেন্ট আমরা বোধহয় করছি, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি এখন সরকারি জায়গা, এটা কিন্তু না ওনার না আমার। আগে কি ছিল দেখে লাভ নেই, এখন LR এটা হচ্ছে সরকারি জায়গা। এনক্রোচমেন্টের তার আপনি দেখে নেবেন, এখানে এনক্রোচমেন্টের কোনো আমাদের মধ্যে নেই। ওয়ার্ড্রপ আপনার রুল হচ্ছে কিচেন, তো পরশুদিন রাত্রে, গতকাল নয় পরশুদিন সন্ধ্যেবেলা আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি সাথে সাথে আমাদের যে ল ডিপার্টমেন্ট আছে সুদীপ্ত ঘটক, ওকে আমি ফোনটা দিয়ে দিয়েছিলাম এবং বলে দিয়েছি এটা এনকোয়ারি করে আমাকে রিপোর্ট দিতে। পরশুদিনের ঘটনা এটা। এবং যেটা দেখুন, কর্পোরেশনে কাজ করুক বা যেখানে কাজ করুক বা যেই করুক, অন্যায় করুক। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।
नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।